برمنگھم میں ہونے والی کامن ویلتھ گیمز کی تیاریاں عروج پر. دنیا بھر سے آنے والے کھلاڑی اور تماشائیوں کی میزبانی کے لیے شہر میں سہولیات کا جال بچھایا جا رہا ہے. میئر اینڈی اسٹریٹ کہتے ہیں اس ایونٹ سے نوجوانوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوں گی. بڑے پیمانے پر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی گئی ہے. بڑی تعداد میں رضاکاروں کی بھی ضرورت ہے. کھیلوں کے اس بڑے ایونٹ کے انتظامات پر عابد کاظمی رپورٹ کریں گے. برمنگھم میں کامن ویلتھ گیمز کا میلہ اس سال سجے گا، جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں. کامن ویلتھ گیمز کی افتتاحی تقریب 28 جولائی کو الیگزینڈر اسٹیڈیم میں ہوگی، جبکہ گیمز کا اختتام 8 اگست کو ہوگا. اس اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش پر 72 ملین پاؤنڈز خرچ کیے گئے ہیں. ان کھیلوں میں 72 ممالک کے 5054 ایتھلیٹس کھیلوں کے 283 ایونٹس میں شرکت کریں گے. کامن ویلتھ گیمز میں اس بار 20 کھیل رکھے گئے ہیں، جن میں کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے. کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کے لیے برمنگھم شہر کو بھرپور طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے. کئی منصوبوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. ویسٹ مڈ لینڈز کے میئر کمبائن اتھارٹی اینڈی اسٹریٹ نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے منصوبوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا. ان کا کہنا تھا کامن ویلتھ کی وجہ سے ہمیں نئے جونز متعارف کروانا پڑیں گے. اب نوجوانوں کے لیے موقع ہے کہ وہ آن لائن جابز کے لیے اپلائی کریں. A really exciting year. We've been waiting for so long for the Commonwealth Games to come, but it is really now upon us. Of course, it's going to be a great sporting event, but there's also so many opportunities for people to take part and get jobs on the back of the Commonwealth Games. So if you're still sort of perhaps looking for a new role after the pandemic, whether you want to be in security, whether you want to be in event management, whether you want to be in stewarding, you can go on our website at the West Midlands Combined Authority, WMCA, look to find your future and you can see about new opportunities you will be trained for. اینڈی اسٹریٹ نے مزید کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرنے جا رہے ہیں. اس بڑے ایونٹ سے پورے ریجن میں نئے ٹریننگ سینٹرز بن گئے، سپورٹ کمپلیکس مکمل ہو گئے. بے روزگاری کے خاتمے میں بڑے پیمانے پر مدد ملے گی. ہمیں اس ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے کثیر تعداد میں نوجوان رضاکاروں کی ضرورت ہے. Perry Bar Station, the new bus sprint fast routes along the Walsall Road, University Station being rebuilt. So actually there's lots, and also lots of opportunity for volunteers to take part, and I'm really proud that there's going to be volunteers that represent all communities in Birmingham and the West Midlands as well. So feeling really good. میئر نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی، بلو سائیکل لائنز متعارف کرائی گئی ہیں اور ای ٹرانسپورٹ سے صاف ستھرا صحت افزا ماحول مہیا ہوگا. I think going to be the most special thing of all when we see the teams from everywhere across the Commonwealth. I hope they'll all feel an incredible West Midlands, or I might even say Birmingham welcome. کامن ویلتھ گیمز کے مقابلے زیادہ تر برمنگھم شہر میں ہوں گے، جبکہ کچھ مقابلے کوونٹری، رائل لیمنگٹن، سینڈول اور لندن میں بھی رکھے گئے ہیں. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. آئرلینڈ کے معروف فٹ بال کلب سینٹ پیٹر ایتھلیٹک اور جی ایس وی پاکستان کے درمیان پاکستان ایمبیسی آئرلینڈ کی کاوشوں سے معاہدہ طے پا گیا. معاہدے کے تحت پاکستان سے 20 فٹ بال کھلاڑیوں کو آئرلینڈ ٹریننگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے. مزید تفصیلات فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں. آئرلینڈ کے مشہور اور تاریخی حیثیت رکھنے والے فٹ بال کلب سینٹ پیٹرک اور گلوبل سوکر وینچر کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. معاہدے کے تحت پاکستان سے 20 نوجوان کھلاڑیوں کو آئرلینڈ لا کر ان کی ٹریننگ کی جائے گی. جو کھلاڑی اچھی کارکردگی دکھائیں گے انہیں کنٹریکٹ دیا جائے گا. اس معاہدے میں پاکستانی سفارت خانے نے اہم کردار ادا کیا. معاہدے کے تحت آئرلینڈ سے مائیکل اوون برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر کام کریں گے اور ان کے ساتھ UEF لائسنس ہولڈر کوچز کیرل فرائی، ساندروگیا اور آئرلینڈ کے سابق ہیڈ فٹ بال ٹیم برائن کیئر کے ساتھ ساتھ جانی میکڈونلڈ، اوبرائن اور جیمی براؤن پاکستان ٹور میں حصہ لیں گے. پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹرائلز لے کر کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا جائے گا. GSV کے ہیڈ محمد زیب نے پاکستان ایمبیسی کی جانب سے منعقد کی گئی میٹنگ میں اپنے مشن اور پاکستان کو فٹ بال کے ذریعے پوری دنیا میں متعارف کروانے اور آئرلینڈ سے اس پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی. I think a word Mike likes to use is connecting the dots. And Mike has continuously been connecting the dots. And now he's connected the dots with St. Patrick's, which we've had great support from Gareth and his team. Because we realize that we are working with English Premier League clubs through Red Strike. But we realize that if we really want to make this realistic for our kids, we felt that St. Patrick's is a much better fit for us. پاکستانی سفیر سردار شجاع عالم نے اسے تاریخی آغاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم سینٹ پیٹرز کلب کے شکر گزار ہیں جو پاکستانی ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے اس پروجیکٹ کا حصہ بنے. Government of Pakistan and our local 888 football club St. Pat's are initiating a talent hunt in Pakistan in which Pakistani footballers in Pakistan will able to come in Ireland
and train with one of the biggest club in Ireland, St. Pat's, it will able to shine the skills of those Pakistani football players and promote football in Pakistan. मीटिंग में सेंट पीटर्सबर्ग क्लब की मैनेजमेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सेंट पीटर्सबर्ग क्लब से पाकिस्तानी नयाद सियासतदान अमार अली, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस, पीओसी और मीडिया के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। The idea here is that somehow from St. Pat's perspective we are a conduit for young, and whether they're underprivileged or not, I don't think we're, as a football club, we don't have any position on ideology, politics, socioeconomics, social justice issues. We're a football club. I'm very happy to see you all here, and thanks especially to Shuja Alam Saab and St. Patrick's Club management for taking this opportunity for giving opportunity to Pakistani young people there. We do a lot of things that go beyond football, and the opportunity to perhaps create links with the Pakistani community in Dublin. And I think when we go and play and when our teams go out, we try and get the players over the last couple of years while I've been involved with the first team. What we try and do is ensure that they give everything. They leave nothing out. They leave everything on the pitch. And they give effort, they give commitment, and they try everything they can. Ireland is sending best of their bests, to Pakistan. So I hope that as they travel around and as they meet the young people, this is promoted there, that if Brian is there, I believe that Michael Owen is also going there to Pakistan. It's a great opportunity for Pakistan, especially the underprivileged young boys, to come here, train themselves and make a mark for themselves in Ireland and in Pakistan as well. So they would probably be coming to a foreign country for the first time, and I'm sure they could not have chosen a better place than Ireland to as their first destination. The best thing about Dublin 8 is it's all local and it's all community as a family, and St. Pat's brings everyone together. A great opportunity for the Pakistani talent. When you will go to Pakistan, you will see Pakistan is full of talent, and especially in football. I think it's a very good opportunity for us to provide support networks that Brian Kerr alluded to earlier, and the challenges that they will face in terms of community and integration with the locals in Dublin. It's a very family knit club. I would like to congratulate all the, especially St. Patrick's Club as well, for giving this opportunity to Pakistani people and bring the young talent from Pakistan. No doubt Pakistan has a huge young population. Pakistan, in terms of developing football in a growing market for football. Yes, cricket was number one, but football for the younger population was a hugely fast-growing sport. Then to learn, a population of 220 million people loving sport. In fact, तमाम तंजीमों ने इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी सफारतखाने को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई। तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान एम्बेसी को इस पे खराज तहसीन पेश कर रही है, जिससे पाकिस्तान का एक तो इमेज बेहतर होगा, पाकिस्तान से बच्चे यहाँ आकर ट्रेनिंग करेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को इंटीग्रेशन में बहुत मदद मिलेगी। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन यूएई की जानिब से एक्सपो 2020 दुबई शरीक KPK के सूबाई हुकूमती वफ़द और वज़ीर सेहत व ख़जाना तैमूर खान झगड़ा के एजाज़ में शानदार इशाइया तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल सैयद मुंतसर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। एक्सपो T20 दुबई में वफाक, पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानब से भी दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और गैर मुल्की सरमायाकारों को KPK में सरमायाकारी करने की तरगीब देने की कोशिशें जारी। इसी सिलसिले में KPK हुकूमत का आला सतही वफद वज़ीर सेहत और ख़जाना तैमूर खान झगड़ा की क़यादत में दुबई में मौजूद है। गुज़श्ता रोज़ पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से इनके एजाज़ में पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी को फ़रोग देना था। इशाइये में स्पेशल एडवाइज़र टू CM फॉर इंडस्ट्रीज अब्दुल करीम खान, MP ज़ियाउल्लाह बंगश, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी KPK शहाब अली शाह, महमूद हसन दाऊद भट्ट, कामरान अफरीदी, अली गुलफराज और मारूफ बिजनेस वुमेन आमना मलिक ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए UAE में पाकिस्तान के सफीर अफजाल महमूद, वज़ीर सेहत तैमूर खान झगड़ा और दीगर का कहना था कि KPK हुकूमत ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करवाई है। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर सेहत व ख़जाना तैमूर खान झगड़ा ने 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि
KPK में इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। अभी जब हम अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं तो हमारे पास पोटेंशियल सबसे पहले तो टूरिज़्म में, क्योंकि जितना खूबसूरत हमारा इलाका है, आपको पता है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म का मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन जो हमारे साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा वो जैसे ही वो टूरिज़्म इंडस्ट्री बड़ी होगी, फॉर्मलाइज होगी, उसको बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा नए सेक्टर्स में, रिटेल में, सर्विसेज में, रेस्टोरेंट्स अभी आ सकते हैं, फ्रेंचाइजेज आ सकते हैं, और हेल्थ सेक्टर में। इशाइये के मेज़बान सदर पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियर जुबैर खान, जनरल सेक्रेटरी खलील बुनेरी, सुलमान वसल, PTI-UA के सदर मोहम्मद नवाज खान जदून और इन्वेस्टमेंट बोर्ड के CEO हसन दाऊद भट्ट और मारूफ बिजनेस वुमेन आमना मलिक ने भी इजहार ख्याल किया। 6 MOUs फाइनलाइज किए हैं, जिसमें एक MOU जो है वो तकरीबन $130 मिलियन की है। इसके अलावा 3 इंटीग्रेटेड जोन्स की है। तो इंशाल्लाह ये महीना KP का बहुत अच्छा रहेगा। हमें तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस इवेंट से और एक्सपो की वजह से पाकिस्तान और UAE में मज़ीद इन्वेस्टमेंट आएगी, बिज़नेस में डेवलपमेंट होगी, और यू विल सी इन द कमिंग टाइम इंशाल्लाह इट विल वेरी पॉजिटिव आउटपुट इंशाल्लाह। पख्तूनख्वा वेलफेयर और बिज़नेस एसोसिएशन को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने UAE में तमाम इंपॉर्टेंट बिज़नेस कम्युनिटी को और इन्वेस्टर्स को बुलाया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में KPK में बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिनिस्टर्स ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपने इनिशिएटिव्स के बारे में बताया, विजन के बारे में बताया। आई होप कि इस तरह की अगर इंटरेक्शन होती रहे तो पीपल वुड अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और इसके नतीजे में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फ्लो आ सकती है। फॉरेनर इन्वेस्टर जो है पाकिस्तानियों के अलावा भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमने ख़ुद पिचअप किए हुए कुछ लोकल इन्वेस्टर्स और कुछ यूरोपियन इन्वेस्टर जो माइनिंग में, पावर में, एनर्जी में, ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और इनके साथ उनकी इनिशियल LOI साइन हो चुके हैं। इशाइया में मुस्लिम लीग नून UAE के चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल मजीद मुगल, सदर ANP UAE अब्दुल्ला खान, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के साबिक जनरल सेक्रेटरी खुरम ख्वाजा, PTI-UA के जनरल सेक्रेटरी सैयद आसफ जमान, मारूफ बिजनेसमैन इफ्तिखार अली तलहा, जन्नत अफरीदी समेत दीगर ने भी खसूसी शिरकत की। पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से आखिर में शुरका को खसूसी अवार्ड्स और शील्ड्स दी गईं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन हनी अली ने दुबई की तारीख का महंगा तरीन गाना प्रोड्यूस कर दिया। गाने को उभरते हुए सिंगर पुनीत जोशी ने गाया है। हनी अली का कहना है कि उनका मकसद यंग टैलेंट को प्रमोट करना है। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। अब अमारात के सहरा में होगी डॉलरों की बरसात। दुबई में रिहाइश पजीर मारूफ बिजनेसमैन हनी अली ने दुबई की तारीख का सबसे महंगा गाना तैयार कर लिया। गाने दुबई के उभरते हुए नौजवान सिंगर पुनीत जोशी ने अपनी आवाज का जादू जगाया है। गाने के बोल भी पुनीत जोशी ने ही लिखे हैं। पंजाबी गाने डॉलरां ते दुनिया नचाने की महंगी प्रोडक्शन ने गाना रिलीज होने से पहले ही अमारात में धूम मचा रखी है, जिसमें तमाम महंगे तरीन अनासिर को शामिल किया गया है। हेलीकॉप्टर, लग्जरी गाड़ियाँ, लैमोजीन कारें, हुबरू सुपर मॉडल गर्ल्स समेत लग्जरी विलास का डिस्प्ले गाने को 4 चांद लगा रहे हैं। गाने के प्रोड्यूसर हनी अली का 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो खुद म्यूजिक लवर हैं। जब उन्होंने गाने के बोल सुने तो उन्होंने इसे प्रोड्यूस करने का फैसला किया। मैं खुद एक म्यूजिक लवर हूँ, और जैसे कि हमारा एक स्टूडियो लॉन्च भी है, वो हम यंग टैलेंट जो है उसे हम मौका देते हैं, उसे प्रमोट करते हैं। तो इसी तरह मेरे पास एक पंजाबी सिंगर आया, उसने अपना एक गाना सुनाया, तो मैंने फिर फैसला किया उसे प्रमोट करने का। आपको सब जो एक्सपेंसिव एलिमेंट है वो मिलेंगे, हेलीकॉप्टर, लेमोजीन, योट, लग्जरी विला, डॉलर्स, टाइगर्स, इसमें सब जो एक्सपेंसिव एलिमेंट हैं वो सब आपको इस गाने में मिलेंगे। नेक्स्ट जो सॉन्ग होगा वो इंशाल्लाह रोमांटिक सॉन्ग होगा, और फिल्म क्या जैसा कि है, अगर कोई अच्छी स्टोरी मिली तो उसे भी हम इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेंगे। सिंगर पुनीत जोशी का कहना था कि प्रोड्यूसर हनी अली और को प्रोड्यूसर डॉक्टर उस्मान जफर को उन्होंने गाना सुनाया जो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे बनाने का फौरी फैसला किया। पुनीत जोशी ने गाना भी गुनगुनाया। टाइम जब मैं उनसे मिला पहली बार, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, मेरे लिरिक्स सुने। काफ़ी गाने मेरे पास हैं, पर उन्होंने एक गाना बोला कि ये बहुत अच्छा गाना है, चल सकता है, आवाज़ भी अच्छी है, लिरिक्स भी अच्छी हैं। ओ हुण तेरे यार दी है वारी सोहणीए, जोर लाले भावें दुनिया आ सारी सोहणी है, नी डॉलरां ते दुनिया नचाउणियां, हो कल्ला कल्ला बंदा ए सलूट बिल्लो मारदा, तेइयां दा काका होया फिरे हौल ठालदा।
हनी अली का मजीद कहना था कि उन्हें उम्मीद है दुबई की तारीख का ये महंगा तरीन गाना सुपर हिट होगा, लोग इसे पसंद करेंगे, जिसके बाद वो मजीद प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। इस मौका पर को प्रोड्यूसर डॉक्टर उस्मान जफर ने ऐलान किया कि इस गाने की प्री लॉन्चिंग दुबई के सिनेमा घरों में इस हफ्ते होगी। सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में पीआईए के मुसाफिर रुल गए। रियाद से इस्लामाबाद आने वाली फ्लाइट 30 घंटे ताखीर का शिकार रही। एयरपोर्ट पर पीआईए के अमले की जानिब से नारवा सलूक पर ओवरसीज पाकिस्तानी सरापा एहतजाज बन गए। सऊदी हुकाम ने पाकिस्तानी मुसाफिरों की मदद की। मजीद तफसीलात के लिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से पीआईए की परवाज नंबर 9754 गुज़श्ता 30 घंटों से ताखीर का शिकार रही। परवाज के 260 मुसाफिरों को इस ताखीर पर बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों को सबसे ज्यादा तकलीफ रियाद एयरपोर्ट पर मौजूद पीआईए के अमले के रवैये से हुई। नारवा सलूक पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सख्त मायूसी और गुस्से का इजहार किया। बहुत से लोग सुबह 5 बजे के एयरपोर्ट पे आके बैठे हुए हैं, सर्दियों में वो भी बाहर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि आपकी 4:30 बजे फ्लाइट है। 4:30 बजे के बाद से लेकर इन्होंने हमें रात को 10 बजे तक कुछ भी नहीं बताया, और लोगों को एक पानी और एक जूस और एक छोटा सा चिप्स में, वो भी कोई 10-12 घंटे गुजरने के बाद बगैर किसी स्पोर्ट के, बगैर किसी उसके हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने मतलब हमें बिल्कुल ही सऊदी हुकूमत के उस पे छोड़ दिया मुकरम पे। बेसरो समानी के आलम में मौजूद पाकिस्तानी मुसाफिरों को सऊदी हुकाम ने होटल और खाना मुहैया किया। इस इशू पर राब्ता किए जाने पर पीआईए हुकाम ने जहाज की रवानगी में घंटों की ताखीर की वजह मौसम की खराबी को करार दिया। उनका कहना था कि दारुल हुकूमत रियाद में मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट को दमाम में उतारा गया। पीआईए दोबारा मुसाफिरों को लेकर रियाद पहुंची तो जहाज के पायलट ने प्रवाज को इस्लामाबाद ले जाने से इनकार कर दिया। जहाज के पायलट का मौकफ था कि वो गुज़श्ता 14 घंटों से फ्लाइट पर ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें आराम की जरूरत है, जिसके बायस फ्लाइट 30 घंटे ताखीर का शिकार रही। सबसे पहली बात यह है कि हम पीआईए में आए हैं, ये पीआईए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो रात को फ्राइडे नाइट को 10 बजे सारे लोग भाग गए हैं। 3 क्रू मेंबर थे इनके, ठीक है, वो तीनों भाग गए हैं। फिर उसके बाद ये जो सऊदी वाले हैं, ठीक है, अल्लाह उनका भला करे, सऊदी वालों ने हमें ये होटल अरेंज करके दिया है। हमने इधर 3-4 घंटे रेस्ट की है और इन्होंने हमें खाना प्रोवाइड किया है, ठीक है। सऊदी गवर्नमेंट इन पे वायलेशन करे, पीआईए इन पे एक्शन ले और इनके जितने क्रू मेंबर हैं, यहाँ का स्टाफ सारा चेंज करे, ठीक है। पायलट साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी फ्लाइंग आवर्स पूरे कर लिए हैं, मैं जो यहाँ से मैंने बैग में जाना था, ठीक है, वो मैं चला गया हूँ दमाम से यहाँ आया हूँ, ठीक है। वो नवाब साहब भी कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। इस मौके पर पीआईए हुकाम ने कहा कि मुसाफिरों को दोबारा एयरपोर्ट पर रवाना कर दिया गया है और सऊदी अरब के मियारी वक्त 4 बजे जहाज इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया जाएगा। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। तुर्क नयाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन अहमद खान को हुकूमत पाकिस्तान ने तुर्की में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एजाजी मुशीर मुकर्रर कर दिया। अहमद खान तुर्की के शहर बुरसा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जेक्टिव मेंबर और अरसा दराज से तुर्की में मुकीम हैं। बुरसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जेक्टिव मेंबर तुर्क नयाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन अहमद खान को अंकरा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मदऊ किया गया, जहाँ एक पुरवकार तकरीब में सफीर पाकिस्तान साइरस सज्जाद काजी ने उन्हें एजाजी मुशीर मुकर्रर किए जाने का नोटिफिकेशन दिया। अहमद खान अरसा दराज से तुर्की में मुकीम है और यहाँ कारोबार करते हैं। उन्हें तुर्की के कारोबारी हलकों में कदर की निगाह से देखा जाता है। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान का कहना था कि अहमद खान की बतौर एजाजी सरमायाकारी मुशीर मुकर्रर किए जाने से दोनों मुमालिक के बरादराना तिजारती और मुआशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे, कारोबारी और मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। आखिर में बिजनेसमैन अहमद खान ने एजाजी तकर्री पर सफीर पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पाक तुर्क कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे ताकि दोनों मुमालिक के अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इस बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।